Wonderful women, Assistant Commandant Monica Salve and Second in Command Ravi Kala, officers of the CRPF, walking in through that door. Isn't it so wonderful to see women in uniform? I just love seeing the power, the authority, the integrity that the uniform conveys. And I think even before we talk to them, we have another round of applause for them. Please. Ravi Kala or Monica CRPF के officers हैं. CRPF, as you know, has been in the news recently. The Pulwama attack that took place was targeted at the CRPF. CRPF conflict zones, Naxal areas, Jammu and Kashmir, insurgency areas में duty करते हैं. And women are not behind men in any way at all. मैं आप दोनों से पूछूंगी, मैं आपसे शुरू करती हूँ मोनिका. यूनिफॉर्म पहनने का, वर्दी पहनने का एक जो सपना था, कैसे शुरू हुआ? My dad is in Maharashtra Police, working as an assistant sub-inspector. So since childhood, I used to be there at police ground, seeing various activities over there. So तब से एक स्कूल टाइम से था कि यूनिफॉर्म सर्विस में ही जाना है. Like though I have 3 brothers, none of that had a dream, but I had a dream to be into uniform services. तो जब 12th में थे तब पता चला कि need to be an officer, I need to crack the UPSC exam. So 12th के बाद जो है फिर engineering graduation लगता है तो engineering complete किया. And then I appeared for UPSC exam. So I even cracked various bank exams as my maths was good, but I never opted for an administrative job. हालांकि mom is there, she's present there. She wanted, yeah, she's Mom there. is here? Yeah. Can mom stand up? We have to say thank you. Can we get her on our camera, please? Mom, you're great to encourage your women into uniform. We love mothers who set their daughters free. She's also a working lady. She's staff nurse in civil hospital. She wanted me to be in administrative service, but I opted no, I want to be in uniform service. So later on, when he started appearing for exams, I got to know about CRPF, the assistant commandant exam. I qualified it. And initially, we were not aware that what CRPF is working for. But when I joined training and I got to know CRPF is doing really commendable job, pan-India presence is there. So I really found very great that yes, I joined CRPF. What kind of tough areas have you served in? I have just 2.5 years of experience right now. But I got my first posting in 215 Battalion in Jammu district of Bihar, which is a highly Naxal affected district in Bihar. Then I also worked in election duty. I was there. I lead my troops for Karnataka election. And then I moved my troop from Karnataka election to Amarnath Yatra. So in these 2.5 years, I was able to serve for election duty also, for LW theatre and Naxal areas also as JNK. And what has been the most difficult thing about being a woman in uniform? लोगों को convince करना पड़ता है, अपने troops को convince करना पड़ता है, घर वालों को convince करना पड़ता है. What is the stereotype you battle? Actually, family side, I'm very fortunate. Like father and everybody was quite supportive for the job. But when we join as a woman in CRPF or in any force, initially when you join, you have to really prove yourself that yes, you are capable enough to lead your troops. Initially, when you go and stand in front of your company or your men, they feel that whether we would be able to do that job. They're very skeptical. क्या मैम कर पाएगी ये सब चीज़? But first time, in the first instance, when you prove your abilities, your physical strength, your mental strength, and you prove that yes, you are able to lead them, then it's only the first time you have to prove. And later on, they have complete faith in your command and control. So I want some of the images of these ladies, women in uniform on duty to play as we talk to them. So let's try and bring up those images on screen. Ravi Kala ji, अपने बारे में बताइए. मैं व्यक्तिगत मेरा परिचय में एक टूंडला क्षेत्र में एक छोटे से गांव से आई हूं मैम. और हाई स्कूल तक की मेरी एजुकेशन टूंडला में ही हुई थी. उसके बाद ग्रेजुएशन मैंने मेरठ यूनिवर्सिटी से किया, गाज़ियाबाद से. मैंने एनसीसी भी ली थी पढ़ते समय. 85 में मैंने ग्रेजुएशन किया और एनसीसी सी सर्टिफिकेट में सीनियर अंडर ऑफिसर के तौर पे, और मैं पैरा जंपिंग में भी मेरा सिलेक्शन हो गया था. उसके बाद मुझे पता चला, क्योंकि इंस्पायर होती रहती थी मेरे जो काम करने का, और मैं सीनियर अंडर ऑफिसर भी थी तो कमांड कंट्रोल मेरा अच्छा था.
हाइट वाइट देख करके और मेरी जब मैं यूनिफॉर्म पहनती तो मेरे इंस्ट्रक्टर और टीचर्स वगैरह बहुत मेरी मतलब सराहना करते थे। तो मेरा एक दिमाग बना कि मैं जाती हूँ पुलिस में। तो उसी समय सीआरपीएफ में महिला बटालियन खड़ी हुई हमारी। मैं बताना चाहूँगी कि सीआरपीएफ सबसे बड़ा लार्जेस्ट पैरामिलिट्री फोर्स है, विश्व का सबसे पुराना और सबसे लार्जेस्ट। और महिला बटालियन पैरामिलिट्री पहली इजराइल में थी और एशिया के अंदर पहली महिला बटालियन इंडिया के अंदर खड़ी हुई 86 में। 86 में खड़ी हुई मैडम। तो मैं सबऑर्डिनेट ऑफिसर के तौर पे चयनित हुई और ट्रेनिंग हमने मद्रास में की। मद्रास में मैं अपने बैच की सोर्ड ऑफ ऑनर रही, सबसे अच्छी वो रही। तो उसके बाद में ट्रेनिंग पास आउट होने के बाद में हम दिल्ली आए महिला बटालियन में, झड़ौदा कला में हमारी पोस्टिंग हो गई। उसके तुरंत बाद मेरठ के कम्युनल रॉयट को फेस किया हमने सबसे पहले। उस समय हम एकदम स्टूडेंट जैसे ही थे, लोग हमको पहचानने में भी तैयार नहीं थे कि हाँ, मतलब क्योंकि महिला पुलिस फोर्स देखी नहीं थी। पुलिस तो क्या कहते थे लेडीज लोग, तो देख, क्या कहते थे आपको देख के वर्दी में? मुन्नी कहते थे। मुन्नी मुन्नी कहते थे। मुन्नी। फिर आपने उनको हमको साहब नहीं बोला तो थोड़ा सा आपको टाइम साहब लगा। नहीं बोलते थे, मुन्नी कहते मुन्नी थे। बोलते थे। तो कोई चीज आती थी हम, लेकिन बहुत अच्छी तरह से टैकल किया। ट्रेनिंग हमारी बहुत अच्छी तरह से हुई, बहुत फोकस्ड ट्रेनिंग हुई। बहुत अच्छी तरह से हमारे जो स्टाफ था, ऑफिसर्स थे, उन्होंने इतनी अच्छी तरह से हमको गढ़ दिया कि हम सारी सिचुएशन के लिए तैयार हो गए। मैम एक बात बताइए, विमेन इन अथॉरिटी, जी। जिन औरतों के पास अथॉरिटी होती है उनसे थोड़ा आदमी डरते हैं और थोड़ा कई बार, क्योंकि मिसोजिनी में हमेशा कहती हूँ जो एक पेट्रियार्की है वो जेंडर न्यूट्रल है। Women can also be biased, men can also be biased, women can also be feminist, men can also be feminist. तो ये आपको सबसे मुश्किल एक जो एटीट्यूड का फेस करना पड़ा था, वो सबसे ज़्यादा मुश्किल या कठिन चीज़ क्या थी आपकी? कठिन चीज़ तो ट्रेनिंग होती है मैडम। ट्रेनिंग में सब कुछ हम लोग एकदम फेस नहीं करते किसी चीज़ को। ट्रेनिंग होती है हमारी बाकायदा 12 महीने की। ट्रेनिंग के दौरान ये सब सिचुएशंस हमको प्रैक्टिकल, और उसके दौरान जंगल ट्रेनिंग भी कराई जाती है। उसमें सब चीज़ें बताई जाती हैं। आधे ट्रेनिंग जो हमारे भीड़ बन जाते हैं, क्राउड बन जाते हैं। हम पत्थर भी फेंकते हैं अपने एक दूसरे के ऊपर। पत्थर भी फेंकते हैं? बिल्कुल, फॉर ट्रेनिंग। फॉर ट्रेनिंग, ड्यूरिंग द ट्रेनिंग। उसमें कि जब हमारा जो ये जो वो जो आएगा, मजमा आएगा, वो जो अनलॉफुल बन जाता है, एग्रेसिव हो जाता है, तो हाउ कैन बी फेस दैट? So training is one part of it, but what about attitudes, Monica? What about attitudes? यहाँ मैं एक एग्जांपल कोट करना चाहूँगी मैम, माय पर्सनल एक्सपीरियंस। जब इनिशियली आप जाते हो किसी भी मेल यूनिट में, सो दे हैव नेवर सीन अ वुमन लीडिंग देयर ट्रूप्स, राइट? सो जब जाते हैं तो फर्स्ट जब हमारा एक ऑपरेशन ड्यूटी था जिसमें हमको एक सीनियर ऑफिसर के अंडर कमांड हम लोग जंगल जाते हैं फॉर जंगल ऑप्स। तो आई बीन देयर, तो मैं क्यूएटी कमांडर थी, एक सीनियर ऑफिसर लीड कर रहे थे और एक मेल कंपनी था। तो मेल कंपनी का जो सबऑर्डिनेट ऑफिसर्स है, दे सब एवरीबडी वाज लुकिंग एट मी कि यार मैडम को लेके आ गए लोग, पता नहीं मैडम इस हिलिटेरियन में चल पाएगी या नहीं चल पाएगी। ठीक है, तो वन ऑफ सबऑर्डिनेट ऑफिसर इंस्पेक्टर रैंक, ही आस्क्ड क्यूएटी मैन कि अरे तुम पता नहीं क्या मैडम इतना हिलिटेरियन चल पाएगी? तो क्यूएटी मैन, आई यूज टू ट्रेन देम, आई यूज टू डू फिजिकल एक्सरसाइजेज अर्ली मॉर्निंग। सो उन्होंने मेरा फिजिकल फिटनेस देखा था, तो ही सेड कि साहब आप अपनी चिंता कीजिए, ज़रूरत पड़ने पर मैडम भी आपको कंधे पे उठा के लेके आएगी। तो दैट इज़ द थिंग कि इनिशियली हमको खुद को चैलेंज लगता है कि यार हम कर पाएंगे या नहीं, बट बेसिकली आई एम रियली वेरी प्राउड ऑफ सीआरपीएफ कि दे इम्पार्ट अ वेरी ऑन इक्वल टर्म्स, द ट्रेनिंग इज़ बीइंग इम्पार्टेड। जितना मेल ऑफिसर्स ट्रेनिंग करते हैं सेम इक्वली वी डू, मतलब 15 किलोमीटर्स रन, 20 किलोमीटर, वॉट एवर दे डू इक्वली वी परफॉर्म। कहीं लीनियंसी नहीं देते, ओनली वी हैव टाइम डिफरेंसेस। ठीक है, सेम व्हेन जंगल एक्सरसाइज आर बीइंग कंडक्टेड, इवन दे डू, वी डू द सेम थिंग। जंगल में हम भी घूमते, वो भी घूमते। तो जहाँ ट्रेनिंग में डिफरेंस नहीं है, देयर इज नो डिफरेंस। सीआरपीएफ एक्चुअली आई एम वेरी प्राउड ऑफ, बिकॉज इट्स वेरी मैच्योर्ड फोर्स इन हैंडलिंग अ लेडी ऑफिसर एक्ट। But please feel free to clap. Don't hold back on the applause.
You know, you've been, Monica, watching this debate about women in combat. You know, we've got women coming into being fighter jet pilots. Many barriers are being broken. लेकिन जहाँ तक infantry और combat की बात है, उस पर अभी तक कोई फैसला नहीं हुआ. What do you feel? What do you feel? Do you think we're ready for women to go into combat? Because one of the things, you know, we keep hearing, अरे is the country ready? कल को एक female prisoner of war हो जाए, जैसे अभिनंदन के साथ हुआ था, for example. इस तरह से if अभिनंदन was a woman, is the country ready? This is कि बार-बार सुनाया जाता है. हाँ, मतलब कंट्री रेडी नहीं है, क्योंकि जब मैं मेरे यूनिट गए थे और जब हम कर्नाटक का इलेक्शन सक्सेसफुली कंडक्ट करने के, इनिशियली कर्नाटक इलेक्शन का एग्जांपल बताती हूँ कि जातियों का विलिंगली टुक दैट थिंग, क्योंकि मेरा जस्ट 1 साल का एक्सपीरियंस था. दे वर स्केप्टिकल हाउ अ मेल कंपनी पूरा एक 90 मैन मूव करना है बिहार से कर्नाटका. 3-4 days आई वुड बी इन ट्रेन ऑल अलॉन्ग, पूरी बोगी में आई वुड बी द ओनली लेडी ऑफिसर. तो थोड़ा स्केप्टिकल थे. देन आई सेड कि नहीं, मुझे जाना है, आई वांट द एक्सपीरियंस. तो दे ब्रीफ मी. दे एक्चुअली ये है कि दे वर कॉन्फिडेंट, ठीक है ना, उन्होंने मुझ पर भरोसा रखा और उन्होंने मुझे भेजा गया. तो वही है कि until and unless the society don't believe in us, they don't have that trust कि हम वो कर लेंगे, तब तक ये नहीं हो पाएगा. मैम रवि कला जी, आप बताइए कि जब आपको मुन्नी कहते थे, साहब कब कहना शुरू किया? नहीं, अपनी ऑर्गेनाइजेशन की बात नहीं कर रही मैं बाकी लोगों आम पब्लिक की बात कर रही हूँ. साहब तो ऐसा थोड़ा है, पास में पकड़ लीजिए माइक. हाँ, इसमें जब पास आउट हुआ था तो द देन प्राइम मिनिस्टर थे मिस्टर लेट श्री राजीव गांधी जी. उन्होंने हमारी महिला बटालियन के लिए काफ़ी मशक्क़त में करके और महिला बटालियन खड़ी की थी. तो ही से दैट आई वांट टू सी ओनली लेडीज ड्यूरिंग दिस पासिंग आउट परेड. तो मैंने कमांड की थी उस समय, और जब पूरे नेशन के अंदर महिला बटालियन का अखबार में नाम था और बहुत अच्छा क्रेज़ मिला, बहुत अच्छा उसके अंदर हमको. फैमिली का क्या रिस्पॉन्स रहा? फैमिली का रिस्पॉन्स बिल्कुल मैच्योर था. फैमिली में एक्चुअल में क्या है मैम, अकेली फैमिली में मदर और फादर ही डिपेंड नहीं होते हैं. कुछ सेफ साइड सोचते हैं मदर फादर, तो जो परिवार का जो और भी गांव के देहात के जो दूसरे रिलेटिव्स होते हैं उनके भी कुछ प्रेशर्स होते हैं. तो जो आसपास के नेबर्स होते हैं, गांव वाले, शुरू में उन्होंने मना किया. क्या बोलते थे? बोले अभी पढ़ाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि हमें पढ़ाने की ज़रूरत. मैंने 75 में प्राइमरी की थी. प्राइमरी के बाद में हमारे यहाँ लड़कियां नहीं पढ़ती थी. उसके बाद ऐसा प्राइमरी के बाद नहीं पढ़ती, मतलब कौन सी क्लास तक? 75 की बात. कौन सी क्लास तक पढ़ती थी? 5th. तो 5th क्लास के बाद लड़कियों को नहीं पढ़ाया जाता? मेरा ऐसा, मैं फर्स्ट बैच था, सो हम 6-7 लड़कियां थी. हमने बोला हम जूनियर हाई स्कूल में जाएंगे. जूनियर हाई स्कूल में गए मैडम. हम जाकर के मैंने 8th क्लास में 40 स्कूल टॉप किए. 40 स्कूल टॉप किए मैंने, तो मेरा पेपर में नाम भी निकला उसमें. और उसके बाद में हमसे बहुत इंस्पायर हुए. फिर दूसरे लोग करने लगे, नहीं पढ़ाओ, लड़की पढ़ने वाली है, पढ़ाइए. अब मुझे वजीफ़ा भी मिला उसमें. फिर उसके बाद हाई स्कूल के लिए दिक्कत आई, क्योंकि उस समय स्कूल एजुकेशंस जो वो स्कूल्स कम थे, तो सेफ साइड नहीं होती थी मैडम लड़कियों को. थोड़ा सा दूसरी तरह से, इसको मैं नेगेटिव नहीं लूँगी, उस समय के हालात ऐसे थे. आज भी हालात हैं, थोड़े बेहतर हुए हैं पहले से, अभी इतना दिक्कत नहीं आ रही है. फिर मेरे जो फादर थे, हालांकि बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं थे, फिर मैंने उनसे बोला, तो बहुत ज़्यादा मेरे को प्यार करते थे वो. उन्होंने बोला नहीं मैं पढ़ाऊंगा बच्ची. मेरी दीदी की शादी 9th क्लास में हो गई थी, बड़ी सिस्टर की. आपकी सिस्टर की शादी 9th क्लास में ही हो गई थी उसकी, बहुत छोटी की, मेरे ख्याल में 13-14 साल की रही होंगी उस समय. तो फिर उन्होंने बोला नहीं मैं पढ़ाऊंगा इसको, और पढ़ने वाली. फिर दीदी भी मेरी पक्ष में आ गई. तो पूरे घर पे प्रेशर पड़ा. तो मेरे ब्रदर थे गाज़ियाबाद में, तो मैं ब्रदर के पास मुझे भेज दिया. तो मैं मेरठ यूनिवर्सिटी ग्रेजुएशन किया. फिर वहाँ पे हमारी हिंदी की मैडम थी, तो उन्होंने मुझे देखा, तो उन्होंने मुझे एनसीसी में पार्टिसिपेट करने के लिए बोला. और मैंने एनसीसी में C सर्टिफिकेट भी लिया और बहुत सारे अचीवमेंट किए. सो योर फादर वाज नॉट एजुकेटेड, और बहन आपकी पढ़ी थी क्लास 9 तक, और आपके इलाके में लड़कियों को क्लास 5 के आगे नहीं पढ़ाया जाता था, लेकिन आपने मेरठ यूनिवर्सिटी से जाके ग्रेजुएशन की. एंड दैट इज व्हाट करेज एंड स्ट्रेंथ इज ऑल अबाउट. I want to actually call on stage. I'm going to take questions if anyone has any, but can we please have Monica's mother on stage? I just want to hear, ma'am. Let's bring her up. If anyone has questions in the meantime, let's please bring her up. मैम आ जाइए. ओके मैम आ जाइए, आज ऊपर आ जाइए. इन द मीन टाइम एनी क्वेश्चंस? यस, लेट्स get him the mic here please. Let's bring him the mic. Yeah, go ahead with your question. I have something to add and not a question. So actually there was a show
on the feminism, and like you only, Dr. Mona Purohit was sharing a stage with some IAS officer, and at that moment, the officer said that we are never taken through any kind of leniency and all. उस समय डॉक्टर मोना पुरोहित ने एक चीज़ कही थी दैट हम लोग फेमिनिज्म को जिस तरीके से देखते हैं दैट इज़ रॉन्ग. हम फेमिनिज्म को इस तरीके से देखते हैं कि हमको उन लोग को कुछ प्रोवाइड करना है, वेर इज हमको उनको इक्वालिटी प्रोवाइड करनी है, बाकी सब लीनियंसी और ये सब नहीं करना है. सो दैट पॉइंट कि सवाल क्या है आपका? सवाल नहीं है, कमेंट क्या है? That is the comment. It is something about feminism should be आपने redefined. assume- That there should not be any kind of leniency. आपने सुना नहीं शायद, मोनिका इनका जवाब देंगी Yeah, कि I'll just tell leniency you कुछ नहीं कि है. leniency नहीं मिलता है in kind of training, like the CRPF which imparts training to all the lady officers or the female constables or lower ranks. We are not given any kind of leniency. That's what I'm saying. If they are running 15 kilometers, if the male officers are running, equally we run. 15 अगर वो दौड़ते हैं उतना ही हम दौड़ते हैं, 20 वो दौड़ते हैं तो हम बहुत दौड़ते हैं. एंड दैट्स व्हाट आई से. आई एम रियली प्राउड ऑफ CRPF एंड माय ऑर्गेनाइजेशन कि अगर वो इम्पार्ट करते हैं ट्रेनिंग ऑन इक्वल टर्म्स तो इक्वल काम लेना भी जानते हैं. Well ठीक said. है, तो वी डू That is दैट. the thing. Okay, That okay, no. everything should be, Baba, like- now please sit. I need to move on. If anyone else has questions, but ma'am, can I please call you here? Can I please, Monica? या I want to actually have this mother-daughter duo together. Ma'am, आपका नाम? मधुबाला दीपक साळवे. आप क्या करती हैं? मैं सिविल हॉस्पिटल में मेटर्न हूँ. सिविल हॉस्पिटल में? हाँ, महाराष्ट्र में. बुल्ढाणा. मैम, आपने बहुत सी फैमिलीज होती हैं, अगर उनकी बेटियां उनको आके कहें कि हम सीआरपीएफ में जाना चाहते हैं, हम फौज में जाना चाहते हैं, तो बहुत से पेरेंट्स प्रोटेक्टिवनेस में आके या कंजर्वेटिज्म या ऑर्थोडॉक्सी में आके मना कर देंगे. तो आपने कभी दो बारी सोचा कि जैसे ही मोनिका आपके पास आए आपने कहा जाओ बेटी? हाँ, वो पहले से बचपन से उसके पापा पुलिस में हैं. हाँ, ऐसे पुलिस डिपार्टमेंट में है और ये वाला ले लीजिए आप. पुलिस डिपार्टमेंट में है और पहले से वो भी एनसीसी में सब इसमें आगे रहती थी. और वो पहले से चाहती थी कि मैं कोई भी, वो इंजीनियर अच्छे से इससे पास हो गई थी, तो मैं चाहती थी उसके सब फ्रेंड्स वगैरह सब पहला ऐसा चाहती थी. वो सब अमेरिका में है और मेरे रिलेटिव्स भी बहुत ज़्यादा अमेरिका में है, तो मैं भी चाहती थी कि वो अमेरिका जाए, लेकिन प्राइवेट जॉब करे. हाँ, लेकिन उसका ये देखिए हमने पहले से कि पुलिस ग्राउंड, हमारे घर के सामने ही पुलिस ग्राउंड था, दिन भर उधर रनिंग करना ये सब. तो फिर मैंने बोले कि कोई हरकत नहीं है, तू जाएगी. तो फिर उसका ट्रेनिंग हमने खुद आंखों से देखा. इतना हार्ड वर्कर करती थी, इतना कठिन ट्रेनिंग. कभी कभी देख के मेरे को रोना भी आता था कि मेरी बच्ची क्या कर रही है. लेकिन मेरे को बहुत प्राउड हुआ कि ये लड़कों के साथ में इतना ट्रेनिंग, इतना हार्ड ट्रेनिंग है मैडम. अगर उसका वो पैराडिंग अपन देखेंगे ना तो रोना आता है कि मेरी बच्ची ने आज क्या क्यों रोना आता है? क्यों रोना आता है? रोना ऐसा आता है मैडम, 10, 15, 20 किलोमीटर वो रनिंग करती है और अभी जंगल में काम करती है, रात रात जंगल में रहती हूँ. आपको फिक्र होता है? हाँ, फिक्र तो होता है, मेरी बेटी है ना इसलिए. Here I would like to say, मतलब हर फौजी, every soldier when he leaves his home, he come home for leave period. तो एक 1 month बहुत अच्छा टाइम होता है कि हम घर बिताते हैं. और जो घर छोड़ते वक्त मतलब नॉट ओनली मैन और वुमेन, एवरीबडी क्राइस. मतलब वो लड़का भी रोता है और वो लड़की भी रोती है जब घर छोड़ना होता है. मॉम हर बार जब मैं घर से छोड़ती हूँ देयर आर टीयर इन हर आईज. ठीक है, बट एक फक्र भी बात होती है. And I can see that you're moved to tears right now. And I just want to say, because this is used against women, tears are a sign of strength. I just want to say that the fact that we can show emotion, the fact that we can cry when we want to, is a sign of strength, Monica. या इट्स अ साइन. दैट्स व्हाट आई से कि जब घर छोड़ते हैं तो सिर्फ लड़की नहीं, वो लड़का भी रोता है. तो एवरी सोल्जर देयर आर टीयर इज इन हिज आईज व्हेन ही लीव्स हिज मॉम. ठीक है, कि पता नहीं वापस कब आएंगे, आ पाएंगे नहीं आ पाएंगे. अभी मैडम वो पुलवामा में जो हुआ था, तो मोनिका ने जम्मू से लेके तो श्रीनगर तक 1 महीना पहले वो कंपनी लेकर गई थी वही रास्ते से. You were on the Same convoy movement. Every officer, not only male or female, every officer who goes for Amarnath Yatra duty goes on the same route जो convoy movement हम करते हैं, because men material दोनों होता है. And 6 vehicles, 1 officer leads. एक convoy movement में हमारे 6 on the vehicles. same Jammu to Srinagar highway where the Pulwama attack happened. No, I mean, 1 month back. 1 month before it. Yeah, Yes. but same route.
So that incident can happen with anyone. It's not male or female. ऐसे टाइम जम्मू में इतना, श्रीनगर में इतना सब कुछ हुआ उस दिन, और उसके ये हमेशा ऐसे इसमें ही रहती है ना, इसलिए मेरे को बहुत चिंता होती है। लेकिन मैं ईश्वर से हमेशा उसके लिए दुआ करती है कि मेरी बेटी आगे जाए। और महाराष्ट्र से कोई भी लड़की सीआरपीएफ में नहीं गई, अभी पहली लड़की है मेरी कि वो सीआरपीएफ में इतने बड़ी पोस्ट पे है। लोग बोलते हैं कि आपको कुछ लगता नहीं क्या? उस दिन पुलवामा में हुआ तो मेरे को कम से कम दिन में से 40 से 50 कॉल आए कि मोनिका कहाँ पर है। मैंने बोली मोनिका 1 महीना पहले गई थी, अभी फ़िलहाल वो वहाँ पर नहीं है, वो श्रीनगर में है। इसीलिए यानी मोनिका ऐसी है, वो पूरे हमारे स्टाफ के लोग और सब पड़ोसी के भी बहुत चाहते हैं उसको। मैं आपसे एक बात पूछना चाहती हूँ कि यहाँ पर जो पेरेंट्स प्रोटेक्टिव रहते हैं, उनको डर लगता है, हिचकिचाते हैं लड़कियों को खुली छूट देने से। आदमियों को दे देते हैं लेकिन लड़कियों को नहीं देते। एज अ मदर व्हाट वुड यू से, आप क्या बोलोगे? नहीं, एक मेरा कहना ऐसा है, आप अगर विश्वास करेंगे, मैं बोलती बेटी अगर 2 साल की रही हूँ, जब से मदर जो है ना वो उसकी फ्रेंड बनना चाहिए। मेरी बेटी हर एक मोमेंट, इतनी छोटी थी जब से कुछ भी हुआ स्कूल में से आती थी KG1 में, पहले पीरियड से आखिरी पीरियड तक जो भी बातें होती थी वो मेरे को सब बताती है। एक्चुअली मैं भी सर्विस करती, ड्यूटी पर से आने के बाद में इतनी थकावट होती थी, लेकिन 10 मिनट तो भी बैठ के मैं उसकी पूरी बातें सुनती थी। अगर जब तुम अपने बच्चे के साथ में और लड़के के साथ में फ्रेंडशिप जैसा रहोगे ना, तो आपने को कोई प्रॉब्लम नहीं रहती। और उसके ऊपर विश्वास करना चाहिए। अभी 100 लोग हो, 100 आदमी रहो, 200 रहो, 400 रहो, मोनिका अकेली रहती है, लेकिन कुछ भी मेरे को फियर नहीं लग रहता। जंगल में जाए, जंगल के कैंप में 2-2 दिन रहती है, सब लेडीज सब जेंट्स लोग रहते हैं, वो अकेली रहती। लेकिन देखो विश्वास एक ऐसी बात है, अगर लड़की पर विश्वास करो ना तो लड़की बहुत ऊंचे चली जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और लड़का और लड़की में मैं कभी फ़र्क नहीं समझती। हमारे घर में भी कोई नहीं फ़र्क समझता। मोनिका छोटी थी, कुछ हमारे बाजू में लोग थे तो वो क्या करते थे कि लड़के लोगों को दूध नहीं देते थे, लड़कों को दूध देते थे। एक दिन मोनिका 3 साल की थी, आई और दोनों, इसका बड़ा भाई और वो, ऐसा मैंने टेबल पे दूध का ग्लास रखे तो आके ऐसा देख रही थी। मैं बोली क्या हो गया बेटा? तो बोले आप लड़की को कम दूध देती क्या मम्मी और लड़कों को ज़्यादा देती क्या? मैं बोली नहीं बेटा, किसने बताया? तो नहीं, बोले ऐसा लोग बोलते हैं कि लड़के लोगों को दूध नहीं होना, लड़के लोगों को अच्छा खाने को नहीं होना। ऐसा होता था। She's just saying for anyone who's finding it difficult to follow the Hindi, she's actually saying that girls were given less milk. As children, girls were given less milk than boys. That's where the discrimination starts. Yes, और लड़के लोगों को अच्छे स्कूल में भी नहीं पढ़ाते। अभी भी देखे, मोनिका सेंट जोसेफ में पढ़ी हुई है। हमारे इधर के लोग बोलते थे काय को लड़की को इंग्लिश स्कूल में पढ़ाते, तुमको लड़के हैं दो उनको पढ़ाओ। मैं बोली नहीं, मेरी बेटी भी जैसा पढ़ेंगी लड़के जैसा आएंगे, मेरी लड़की वैसी लड़कों के जैसा रहेगी। और आज मेरी बेटी ने मेरा नाम बहुत ऊंचा किया, इसलिए मेरे को बहुत रवि कला, आप इसमें कुछ जोड़ना चाहेंगे? हाँ, मैं जोड़ना चाहूँगी। मैं ये जो व्यक्तिगत अनुभव है कुछ, उसके अलावा मैं पूरा कंट्रीब्यूशन बताना चाहूँगी महिला बटालियन का, वुमेन्स का। जी, 1 मिनट में थैंक यू मॉम को थैंक यू बोल देती हूँ। थैंक यू मॉम, बिग राउंड ऑफ अप्लॉज। मोनिका कम बताइए। And questions, anyone? We're in the last 5-7 minutes. I'm seeing questions. Stand up so our mics can find you. Stand up so our mics can find you. Yeah, ma'am, बोलिए। तो मैं ये बताना चाहूँगी कि महिला बटालियन का जो कंट्रीब्यूशन है, जो सबसे हाईएस्ट सिक्योरिटी जो एड है जो हम देते हैं SPG। SPG में कमांडो ट्रेनिंग होती है मैम। अब कमांडो ट्रेनिंग को सुन करके आपका दिल दहल जाएगा, वो भी फेस करती हैं और बिल्कुल मेल ऑफिसर्स के साथ में करती हैं। जंगल ट्रेनिंग 8 दिन की होती है, 10 दिन की होती है, बट रॉक क्लाइंबिंग होती है उसके अंदर, और उसके अंदर तैराकी भी होती है। और वो इस तरह से सोने नहीं देते हैं मैडम, 6-7 दिन हमको सोने नहीं देते हैं। रात के 1 बजे तक क्लास चलना। क्लास का सब्जेक्ट कुछ भी नहीं है, बस ऐसे कुछ बोलते रहेंगे, बट आपको जगाना है उनको। फिर उसके बाद सुबह 3 बजे फिर क्लास शुरू हो जाएंगी। फिर उसके बाद में बड़ी मुश्किल से 5 मिनट की विसल लगेगी, उसी में सो जाएंगे। फिर उसके बाद उतनी नींद मिलती है, उसके बाद कोई नींद नहीं मिलती। खाना कब मिलेगा और आपको पानी कब मिलेगा ये भी पता नहीं है। और उसके बाद में 20 किलोमीटर की 40 किलोमीटर की एक पेट्रोलिंग और वो होती है, जो उसके अंदर सारे ग्रुप डाल दिए जाएंगे। कमज़ोर भी होगा उसमें, एक फास्टर भी होगा, ताकि एक ग्रुप, मतलब फास्टर अकेला नहीं आ सकता, पूरे ग्रुप को लेकर के आना पड़ेगा। कुछ ऐसे भी उसके अंदर होते हैं वो चल नहीं पाते हैं, तो उनको हमको पीठ पे लाद के लाना पड़ता है। मेल फीमेल का उसमें कोई रेशियो नहीं है, सब होंगे उसके अंदर। जब UAC जो अनकम्बाइंड जो हमको कराई जाती है तो उसमें दौड़ा दिया जाता है। तो आप कह रहे हैं कि यूनिफॉर्म आदमी और औरत के बीच में डिस्टिंग्विश कोई डिस्ट्रीब्यूशन नहीं करती। तो जिन्होंने लीनियंसी की बात की वो इसको ध्यान से सुन ले। मैं 1-2 सवाल ले लेती हूँ, then we'll continue our conversation. Yes, please stand and ask your question. मैम, मेरा सवाल है कि हम अकेले क्यों लड़ते हैं?
हम साथ में क्यों नहीं लड़ते? जैसे कि अभी देखा जाए, आई कैन सी अ गेट #WeTheWomen. So if we look at the crimes or atrocities which occurs against women in society, so society as a whole is responsible for that. All section, all. But have you seen how these women have had to struggle? Would men have had to struggle like this? That's what my point is. Because if we look at the version of Gyanshuda ma'am, if we look at the version of मैडम, ये Farhana आपसे Naeem, सवाल है कि मुझसे? and all the women. सवाल क्या है आपका? मेरा सवाल ये है कि हम साथ क्यों नहीं लड़ते? आप मेरे से सवाल कर रहे हैं, मैडम से कर रहे हैं? मेरे से? जी मैम. मेरा हम साथ क्यों नहीं लड़ते? मेरे हिसाब से हम साथ लड़ रहे हैं. That's why there's so many men here today to be part of this dialogue. You are part of our fight. लेकिन अगर आप ये delusion में रहना चाहते हैं कि औरतों को डबल हार्ड नहीं लड़ना पड़ता. If you are under the mistaken belief that women don't have to fight twice as hard to get to the same point as you, if you think you're joining the CRPF and her joining the CRPF is the same battle, my friend, you are wrong. मैम, Give the mic to the next नहीं, student. सीआरपी का मैं आपको एक वो बताती हूँ. पूछते हैं एक औरत और एक आदमी को एक ही मकाम पे पहुंचने के लिए क्या अलग लड़ाई नहीं करनी पड़ती? आपको स्कूल में पढ़ने के लिए लड़ाई करनी पड़ी, किसी लड़के को स्कूल में पढ़ने के लिए लड़ाई करनी पड़ती है क्या? See, नहीं, ये तो Monica, पढ़- let Monica here- take here it. ये I तो would like पढ़ने to के लिए say- पिटते हैं सर. हाँ, ये ये तो तो- पढ़ने के लिए पिटते हैं कि क्यों नहीं पढ़ रहे हो. हाँ पढ़ा. Here I would like to say कि मैं स्टार्टिंग में ही बोला कि जब भी एक लेडी ऑफिसर वहाँ पोस्ट होती है वेर एवर इन कॉम्बैट रोल, वेदर इट्स LW, मतलब CRPF इज वर्किंग, महिला यूनिट्स इज देयर इन मणिपुर ऑल्सो, they are in RF also, they are in LW theatre also, they are in JNK also. But wherever a lady officer is being posted, और जहाँ पर भी वो जाती है, तो why I say कि when she is posted, she has to prove herself. Why I say this? क्योंकि वहाँ जाने के बाद उसको वो एबिलिटी प्रूव करनी पड़ती कि yes, she is capable enough to do that job. She is capable enough to walk down 30 kilometers of that hilly jungle terrain along with the troops and bring them back safely. ठीक है? और fight that Naxal war. तो ये क्यों मैं बोलती हूँ कि उनको वो प्रूव करना पड़ता है. हालांकि दैट्स नॉट द सेम विद द मेल ऑफिसर्स, बिकॉज उनको पता है कि वो लोग वो काम करते हैं. Male officers ought to be there for the combat roles, but lady officer has to prove her. And once it's proved, your men under your command really trust you. Really trust you. I had been there जब for JNK from Karnataka. It's only because of my troops कि मैडम आप क्यों tension? But do troops take orders from? How do the troops respond in terms of the willingness to take orders from women? Yeah, they are quite matured now. They're like quite mature. This Okay. We the women, or what the women, this movement has been, that contribution goes to them. That yes, male officers or the troops respect us a lot. Okay, next question. Hanji, can you stand? Yeah. Thanks. First of all, I'd like to congratulate both of the lady warriors that we have. Thank you so That much. actually gives us Thank a you, 56 thank you. inch chest to proclaim that equality is being realized in the practical sense. But I'd like to point out a flaw here. Like, we have a belief that I've myself written on this issue in the Tribune paper and an array of regional papers. What's your point? My point is that the mere notion that we have that women are not employed in combat roles in the armed forces is a myth and unfounded in itself. And now the reality is, like with respect to the army and the statistics, we have an army of around 1,500 women warriors across all the 12 branches of the Indian Army. They are required and applied in the combat forces. They are part of the combat roles in the sense that they make, all kind of, they handle military radars, they make roads for better influx and speedy influx of the armed vehicles. But one point, only in the closed combat roles, that is hand-to-hand fighting, That's right. there has been an exception that That's has been right. created. Do you think that exception should be there? Yes, there are reasons. What are the reasons? It's not my personal opinion. It's a reason that is being propagated in the official stand of the Indian Army is that there are various physical, psychological and situational reasons. And I can say that it can be traced to the genetics itself. For serving in the close combat roles, hand-to-hand fighting, you need, beyond professional competence, you require I'll like to answer. disproportionate physical strength. Okay, hang on. And we cannot compromise. Okay, hang on. Yeah, Hang on. Firstly, the army chief has said that he is going to review the decision to not take women in hand. That decision is under It's still review. in the stand of August 2018. Yes, but that decision is under review. Women serving in combat or conflict zones is not the same as women being in combat roles. The hand-to-hand fighting, the infantry roles has not been opened up for women yet. He believes, I've heard your question, he believes
होना भी नहीं चाहिए क्योंकि डिस्प्रपोर्शनेट स्ट्रेंथ, साइकोलॉजिकल स्ट्रेंथ आप या दैट्स व्हाट आई से कि मतलब इन्होंने जो पॉइंट रेज किया इट्स रियली गुड पॉइंट. यहाँ मैं वही बताना चाहती हूँ कि जब ट्रेनिंग इम्पार्ट होता है ना तो वो मेल और फीमेल को नहीं इम्पार्ट होता है. मतलब समटाइम्स ऐसे ही आउट ऑफ मतलब जो ट्रेनिंग इम्पार्ट हुआ तो आई जस्ट सेड माई मॉम वन डे कि मॉम अगर किसी का गला काटना होगा ना नक्सली का तो काट देंगे और एक चेहरे पे शिकन भी नहीं आएगी. You all must have watched NH10. That's right. NH10 movie, right? Yeah. जब initially half of the part of the movie is कि men are doing cruelty, right? मारते हैं या जो भी है cruelty. And in the last part of the movie is Anushka Sharma is doing the same thing. That's right. So cruelty or mental or psychology वो जो भी है it does not depend on male or female. A female can be more cruel than men. And this assumption, can I And that's what is combat role. Like जब लड़ाई होता है और जब हमारे suppose I going into jungles और किसी को गोली लग गया, ठीक है, तो वो हमारी पार्ट ऑफ ट्रेनिंग है कि हम कैसे उसकी बॉडी लिफ्ट करके मैं कैसे वो खून से समी हुई बॉडी उठा के मैं उसको लेके आऊंगी. ये मेरी ट्रेनिंग है भाई. That's और right. जब मेरी ट्रेनिंग अच्छी हुई है तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है. मतलब आई एम फिजिकली एंड मेंटली बोथ फिट. Briefly. दूसरा मैम Brief interjection. एक मिनट आपके इसमें मैं और जोड़ूंगी कि जो हम लड़ाई लड़ते हैं सामने वाले से हमें कोई नफरत नहीं होती है, ना हम उसको कोई दुश्मन मानते हैं, क्योंकि हम अपनों के बीच में सरवाइव करते हैं. हमको चिंता रहती है जो हमारे पीछे बैठे हैं, मीन्स कि तुम लोग जो बैठे होते हो हमारे पीछे, हमें उनकी लाइफ की चिंता होती है, तब हम सामने वाले को जवाब देते हैं. Brief interjection. Yeah. Very the point brief. that ma'am mentioned about Anushka Sharma fighting roles. First, that's a movie. Second, when a female fights in a You're sport, actually in a sport, you're actually mansplaining to two women in uniform. let me complete. I mean, I'm just stunned. One point. In any sport, you have the women competing against the women. You have women boxing, you have women cricket. Why does Yeah, the I woman can- compete against a man? Okay, I boss, can show you. gotta stay Yes, beyond yes. emotions. Agreed. You, I can give a contact number or I can show you photographs. During my training, we had a boxing. मतलब we have training of boxing game also, right? तो जब वो ट्रेनिंग होता था तो व्हेन सम मेल ऑफिसर्स आर नॉट इंटरेस्टेड इन प्लेइंग दैट गेम, मतलब दो ऑफिसर्स का फाइट लगा दिया और वो ऐसे ही मतलब एक दूसरे को बॉक्स कर रहे हैं, दे आर नॉट इंटरेस्टेड. तो मेरे जो ट्रेनर थे जैसे से मेरे पास दो धुरंधर है. देयर वाज वन ऑफिसर कार्तिक के whose name has gone for gallantry medal. तो कार्तिक के and the other one is मोनिका. उनसे पिटवा दूंगा, ठीक है ना. एंड it happened in my training time when those officers were not taking it seriously. उस ऑफिसर की और मेरी फाइट लगी थी. It happened. आप लोग बिलीव नहीं करोगे लेकिन ये हुआ था. But Monica, what you heard from the young man right now is a very typical. It's a very typical attitude. हाँ, मतलब इक्वालिटी हमको एक तुम्हारे साथ लड़ाई नहीं करनी है नहीं, भाई. मैं कुछ हमको पूछना पता चाहती है हूँ. हम इक्वल. But मैं हमको यही प्रूव करना है कि हम कैपेबल है वो काम करने के लिए. Okay, हमको तुम्हारे साथ I'm बराबरी नहीं not करना. allowing हमको you पता है any equal. more मैम hogging of the mic. मैं Now- और जोड़ना चाहूँगी मैम इसमें. जब हम लोगों को जब एसपीजी की जो कमांडो ट्रेनिंग होती है तो हम जितने भी मेल फीमेल ऑफिसर होते हैं उनको एक साथ दौड़ा दिया जाता है. जो आगे आ जाता है चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो, जो आमने सामने होगा एक एनिमी होगा, एक उसमें फाइटर होगा और वो उसको पटकेंगे. But you know what you heard from him, Monica and Ravi Kala ji, is a very typical attitude. You know this kind of attitude कि भैया आपकी strength नहीं है, आप बहुत soft हैं, आप हमारे जैसे हो ही नहीं. This kind of stereotyping, and they think that they're paying you a compliment. You know when women are called soft, everyone thinks they're paying you a compliment. Actually, in jobs like yours, it's a way to put you down. It's a way to say you can't be as No, tough. yes, we are soft and we ought to be there. और वो जो softness है ना, वो उसके वजह से we are very sensitive towards our job, towards our men, towards administration, towards management. कोई भी lady officer, every lady officer are working there. There's one lady officer working Cobra also. There's lady officers who are in Bastaria battalion, in Dantewada also. वो जब वो चीज़ें हैंडल करती है और उसके वो सॉफ्टनेस की वजह से वो बहुत सेंसिटिव होती है वो जॉब करने में, ठीक है. एंड शी ऑट टू बी देयर एंड शी विल बी देयर ऑलवेज. But you can also be tough when the job what you said that if I have to tomorrow, you know. Yeah, that's what you said if I'm I a have soldier. If I have need to be tough. Slit the throat of my adversary, I will do it. If Yeah, that's I'll what do my it. If the job requires. If the job requires. बोलिए. मैम जो लेडीज़ के बारे में आप बोल रहे हैं ना, ये सृष्टि की रचयिता है, कोमल है, कमज़ोर नहीं.
आप अपने महान कवि की उससे सदियों पुरानी बात कोमल है, कमजोर नहीं। कमजोर नहीं, शक्ति का नाम ही नारी है। तो इसके बाद शक्ति है, ये सृष्टि की रचयिता है और एक सौंदर्य का प्ररूप है। कोमल का मतलब ये नहीं है कि वो कमजोर है या वो साहसी नहीं है। अरे आपको 9 महीने कैरी करके, आपको चाहे पुरुष हो चाहे महिला हो, ये लेडीज है जो सृष्टि को रचती है। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि हम आपसे द्वेष रखते हैं। हम अपनी समानता चाहते हैं कि जहाँ पे द्वेष है या जहाँ पे वो चीज़ें हैं उनको इक्वलिटी में लाई है लेडीज़ को, क्योंकि ये आधी संख्या है। यदि एक ही हाथ काम करेगा दूसरा नहीं करेगा तो हम विकास नहीं कर सकते हैं। सामाजिक विकास के लिए, समाज के विकास के लिए, राष्ट्र के विकास के लिए दोनों को एक साथ चलना बहुत ज़रूरी है। मेरा यही कहना है। Any other questions? We're in the last 2-3 minutes. Yes, can we get you the mic? Just stand up so our volunteers can find you and just come again. My question is to both of you, like आप इतनी ही ज़्यादा रिगरस ट्रेनिंग से जाते हो तो उस ट्रेनिंग में एक पॉइंट नहीं आता है जब आपको लगता है कि नहीं मुझे पीछे हट जाना चाहिए या मुझसे नहीं होगा, तो वो क्या चीज़ होती है जिससे आप लगे रहते हो कि नहीं मुझे आगे बढ़ना है, जो हर एक लड़की के पास होनी चाहिए कि नहीं मुझे अब पीछे नहीं जाना है बट आगे ही बढ़ते रहना है? वो हर एक लड़की के पास होना चाहिए सेल्फ मोटिवेशन। ये क्या तो था जो आपको रखे रहता था कि नहीं अब मैं पीछे नहीं जा सकती, लाइक आई हैव टू डू दिस? जिज्ञासा तो हमेशा रहनी चाहिए। वो लड़की ही क्यों, लड़के के अंदर भी रहनी चाहिए। तो यहाँ मैं वही बोलती हूँ ना कि यहाँ व्हेन इट कम्स टू ट्रेनिंग और वर्क, इट्स ऑलवेज यू हैव टू प्रूव योरसेल्फ। मतलब एक यहाँ पे मैं एग्जांपल या मेरा एक्सपीरियंस बताना चाहूँगी। जब हमारा जंगल ट्रेनिंग स्टार्ट हुआ था तो ऐसा था कि वी वर डिवाइडेड इनटू 86 का हमारा बैच से, वी आर डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। तो मेरे वाले पार्ट में हम लोग 45 ऑफिसर्स थे जिसमें हम 2 लेडी ऑफिसर्स थे। तो जब हमारा ट्रेनिंग स्टार्ट होना था और जंगल हमको घूमना था, मतलब 15 डेज वी हैड टू बी देयर, तो मैं मेरे साथ अर्चना करके मेरी बैचमेट थी। तो आई सेड कि अर्चना देखो एक चीज़ हमेशा ध्यान में रखना, कुछ भी हो जाए, मतलब 20 किलोमीटर चलना है, 40 किलोमीटर चलना है, हॉल्ट हम नहीं बोलेंगे। हॉल्ट हम नहीं बोलेंगे मतलब हम जब वॉक डाउन करते हैं इनटू जंगल्स फॉर 20-25 किलोमीटर जो भी जंगल एक्सरसाइज होता है ड्यूरिंग ट्रेनिंग, तो हॉल्ट मतलब ट्रूप्स वेट फॉर 2 to 3 मिनट्स। जहाँ पूरा ट्रूप्स होता है वही हम लोग बोलेंगे कि हॉल्ट। एक ने हॉल्ट बोलते हैं तो सब लोग इशारा करके सब लोग वहाँ रुक जाते हैं, मतलब बॉडी का टेम्परेचर और थोड़ा थकान वकान थोड़ा मिस होने के लिए। तो मैंने अर्चना को बोला था कि अर्चना देखो हमारे तरफ से हॉल्ट नहीं होगा, ठीक है, और जब भी तुम्हें लगे कि तुम्हारा पोटेंशियल खत्म है और तुम मतलब आगे पैर नहीं रख पाओगी, वहाँ से 1000 काउंटिंग स्टार्ट कर देना और रुकना नहीं है। हॉल्ट हमेशा मेल ऑफिसर्स की तरफ से ही आएगा, ताकि कोई हमको ये ना बोले कि ये लोग बार बार हॉल्ट करते रहते हैं और थक जाते हैं और इनकी एबिलिटी नहीं है, ठीक है ना। तो वही है कि मतलब इट्स ऑल अबाउट योर माइंडसेट, इट्स ऑल अबाउट योर सेल्फ मोटिवेशन, हाउ टू यू प्रूव योर सेल्फ कि नहीं ये मैं कर नहीं पाऊंगी, मुझे करना ही है, क्योंकि तुमको कमजोर नहीं साबित कर सकती हो। Okay, last question from the floor. Yeah, just come ahead. Just come ahead. Yeah, just give him the mic. थोड़ा आगे आ जाओ. Go ahead. हेलो मैम, आपने मेंशन किया जंगल ट्रेनिंग, थोड़ा ऊंचा माइक पकड़ लो. आपने मेंशन किया जंगल ट्रेनिंग के बारे में। सो आपको लगता है कि हमारे बैच जो 18 to 23 एज ग्रुप के लोग हैं जो हमारे उसमें है, उनका कर्फ्यू टाइमिंग होता है 9 और 12। सो आप जंगल ट्रेनिंग कर सकते हैं, हम अपने कैंपस में सेफली नहीं रह सकते हैं। आपका क्या टेक है? प्लस मैम प्लस one more question. How will she comment on your campus? मैम इसका मैं जवाब दूंगी मैम। अच्छा, serious question. what is Ask them a question related to them. मैम, Come on. इनका एक मिनट, इनका सवाल अपने यूनिवर्सिटी के, इनके अपने स्टूडेंट इश्यूज से, in general आपका इनके लिए क्या सवाल है? To related to their work. अगर वो जंगल में रह सकते हैं तो हम अपने कैंपस में क्यों नहीं रह सकते? फर्स्ट एंड सेकंड। Yeah, I'll answer. Good question. एंड सेकंड मैम, what do you think? What is your take? What do you think that what is the solution in these cases? कि 9 बजे बंद हो रहा है, 10 बजे. So my only comment, एक minute, my only comment is that I believe in equal deadlines for boys and girls on campus. Any hostel that discriminates between men and women on curfew timings, I don't agree with. Beyond that, I think it is for every university to determine its own rules as long as it doesn't discriminate on the basis of gender. That's my view. But I want to, we're undermining these women by talking. You can bring it up in the open mic session. This has to be about them. इसी तरह के No, जो I'll answer You want to this answer? question. Yeah, I'll Okay, go answer ahead. this question. The basic difference is you are a civilian and we are a soldier. अरे You are a civilian
You are a civilian in the campus, and we are a soldier, a trained soldier we are. So there ought to be कि हम लोग मतलब मेरा वीडियो भी आपने अगर वी द वुमेन एशिया पर देखा होगा तो इट्स लाइक वी आर लाइक मतलब जहाँ लेडीज को सिक्योरिटी की जरूरत पड़ती है एंड वी आर पार्ट ऑफ सिक्योरिटी. Okay, I have to end. I just want to give 20 seconds to both मैं of you. आपसे एक सवाल करती हूँ, क्या आपको महिला सशक्तिकरण से कोई गड़बड़ लग रहा है? है? तो ये सवाल तो बचकाना है आपका, ये कोई मतलब नहीं है. आपके घर में सुनिए मैम, मेरा पॉइंट ये है अच्छा, बॉस. अगर मैं 12 बजे बाहर आ सकता हूँ कैंपस में, मैं सिविलियन हूँ, डेफिनेटली मैं फाइट नहीं कर रहा हूँ. बिल्कुल बिल्कुल, कुछ नेचुरल चीज ऐसी होती हैं कि हम सेफ्टी सिक्योरिटी की वजह से इन सब चीजों के लिए ध्यान रखते हैं. आप उसको दीगर वे में मत लीजिए. आपके घर में सिस्टर को 12 बजे भेजा जाएगा कि आपको भेजा जाएगा, ये बताइए. And that is the discrimination. I have to close here. 20 seconds conclude. What would you say to the young men and women here? आपने अपना सपना देखा, आपने पूरा किया. आप इनको क्या मोटिवेट, आखिरी वर्ड्स आपके इंस्पिरेशन के क्या रहेंगे? रवि कला जी, and after that मोनिका. हाँ, मेरा जो आप लोगों के लिए जो संदेश है वो ये है कि जो मैंने बताया पहले ही कि शक्ति का नाम ही नारी है, और सीआरपीएफ एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो हमको उसने एक टॉर्च दी, मशाल दी, हमने दूसरों को उसका मार्गदर्शन दिया. और उसके बाद में सभी जो हमारी गर्ल्स बैठी हुई हैं न्यूली, और जो बॉयज़ हैं, इसको भी मैं सबको बोलूँगी, और मेरा संदेश है, मेरी गुजारिश भी है, और मैं ये कहना चाहूँगी, दिशा निर्देशन भी हैं कि आप अपने व्यक्तित्व को पहचानें, अपने अंदर की ऊर्जा को पहचानें, अपने विश्वास को, और अपने आप को खुद पढ़ें. दूसरे लोग क्या कह रहे हैं, अच्छा कह रहे हैं, बुरा कह रहे हैं, यदि आप किसी के कहने से हंसते हैं और किसी के कहने से रोते हैं, इट मीन्स कि आप अपने आप में, अपने व्यक्तित्व में नहीं जीते. मोनिका, लास्ट वर्ड्स. प्रोफेशन विच वी टेक शुड बी अपना पैशन होना चाहिए, ठीक है ना. जैसे कि अगर आपको पुलिस फोर्स ज्वाइन करना है और एनी फोर्स ज्वाइन करना है, आइदर द लोकल पुलिस और द सीआरपीएफ और एनी पैरामिलिट्री फोर्स और आर्मी और नेवी, इट्स योर ओन पैशन. और जब हम हमारे पैशन के हिसाब से जीते हैं ना, तो वी पे द प्राइज ऑल्सो. दैट्स राइट. ठीक है, लेकिन एक मन में सेटिस्फैक्शन होता है कि नहीं यार, मुझे करना था, मैंने कर दिया. ठीक है, और वो जो सेटिस्फैक्शन है, वो जो हैप्पीनेस होता है ना, वो सिर्फ तुम्हारे लिए होता है, क्योंकि वो तुम किसी के लिए नहीं जी रहे हो, अपने लिए तुम्हारे अपने लिए जी रहे हो. तुम्हारे खुद का वो अस्तित्व है, और अपने अस्तित्व के लिए जियो. And more women need to live for ourselves and not for other people. I actually think you'll agree with me that these wonderful women in uniform deserve a standing ovation. Thank you so much. Thank you, ma'am. Monica and Ravi Kala, a big round of applause. Fantastic, inspirational stories. Thank you so much. Thank you. Come on, let's give it up for Monica and Ravi. Absolutely fantastic. Absolutely fantastic. Please.